Welcome in Parisha video lecture. Today we will study social science. Standard 7th, semester 2, chapter 2. Chapter 2 है India, climate and natural resources. India is a vast country in terms of area. Due to the vast natural diversities, the climate conditions differ from region to region. Climate refers to the average weather conditions over a long period of time. The altitude of the place, location of mountains, plateaus, distance from the sea or ocean. The tides and currents of the sea or the ocean and forest cover play an important role in creating the climate condition of a place. भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को क्लाइमेट कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। India is situated in the northern hemisphere and lies between 8 degree north to 37 degree north latitudes. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Due to this, northern India experiences a cooler climate and it is warm in the central region. भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य से कर्कवृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है। Several places of the country are more than 1500 kilometers away from the coast. Due to this, those places experience extreme climate condition with both winters and summers being severe. However, the places situated at higher altitude are cooler. Example, श्रीनगर, मनाली। देश के कुछ समुद्री किनारे के से लगभग 1500 किलोमीटर से भी दूर है। इस कारण यहाँ पे ठंडी में ज़्यादा ठंडी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, परंतु जो स्थल ऊंचाई पे है वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, जैसे कि श्रीनगर, मनाली। यहाँ पे मैप में हमको दिखाई देगा टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। जनवरी में कैसे है और जुलाई में किस तरह है। द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू सीजनल विंड्स। These winds do not always blow in the same direction throughout the year. This results in unequal distribution of rainfall in different parts of the country. Thus, Meghalaya and Assam experience heavy rainfall whereas there is rainfall in the desert region of the Rajasthan. भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये हवाएं 12 महीने एक जैसी नहीं होती है और एक दिशा से नहीं बहती, इसलिए सभी जगह एक समान बारिश नहीं होती है। मेघालय और असम में ज़्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान में कम बारिश होती है। सदर्न इंडिया बीइंग पेनिनसुलर इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स 3 sides. Due to this, places near the sea coast experience moderate heat and cold. Consequently, these areas enjoy a moderate climate. The Eastern Ghats and Western Ghats are on the east and west coast of South India respectively. This also has an effect on the seasonal rainfall. Winds changing their course according to the seasons is a special feature of India's climate. India experiences all the 3 seasons, winter, summer and monsoon. दक्षिण भारत में के तीनों तरफ समंदर है। इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण इक्वल यानी कि सम है। हिमालय और पूर्व की गिरि श्रृंखलाएँ नमी युक्त हवाओं को रोकती है।
इस कारण मेघालय और असम में ज़्यादा बारिश होती है। मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषता है। भारत में 3 ऋतुओं का अनुभव होता है, ठंडी, गर्मी और बारिश। पहला सीजन है विंटर। इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ड्यू टू द slanting rays of the sun during winter. The temperature fall. Places in northern and northeastern India like Shimla and Darjeeling experience extremely cold temperature. Many a times the temperature falls below 5 degrees Celsius, which result in snowfall at times. It is not very cold in southern India as it is comparatively nearer to the equator. ठंडी भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में ज़्यादा ठंडी होती है। सूर्य की किरणें जो होती है वो स्लांट पड़ने के कारण यानी कि तिरछी पड़ती है, तो उस वजह से तापमान हमारा जो है नीचे जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला, दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। कई बार वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और वहाँ आए दिन हिमवर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक है, इस कारण अधिक ठंडी नहीं पड़ती। अब हम समर की बात करेंगे। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. In many places of central and western India, the temperature ranges between 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius during April and June. It is extremely hot in the desert of Rajasthan. भारत में मार्च से मई महीने तक के समय में गर्मी की ऋतु का अनुभव होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण तापमान ऊंचा जाता है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच रहता है। राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होती है। Monsoon is a very important season of India. It lasts from June to September. India receives approximately 80% rainfall during these months. The winds blowing across the Arabian Sea enter India through the Malabar coast of Kerala. That region receives more than 300 of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal brings rainfall to the eastern parts of India like West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. Monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the months of October and November. भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है बारिश। जून से सितंबर महीने के समय के दौरान बरसात की ऋतु का अनुभव हमें होता है। भारत की लगभग 80% बारिश इस ऋतु में हो जाती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे से प्रवेश करती हैं। वहाँ 300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती है। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश लाती है। इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट की इफ़ेक्ट कैसे होती है ह्यूमन लाइफ पे? क्लाइमेट हैज़ अ ट्रेमेंडस इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. This effect is visible in the diet, lifestyle and nature of the people. क्लाइमेट का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोगों का भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि पर क्लाइमेट का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान faces water scarcity and hence most of the houses have walled terraces and store water. राजस्थान के
मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान छत वाले होते हैं, यानी कि टेरेस वाले होते हैं। People in northern India use woolen garments to protect themselves from extreme cold, while people of South India prefer cotton clothes to protect themselves from heat. The people of the desert region wear loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert. They also cover their heads with a cloth piece to protect their head and hair from the sand. भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए लोग वुलन क्लॉथ्स का उपयोग करते हैं। फिर दक्षिणी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग ज़्यादा गर्मी से होती है तो वहाँ उससे बचने के लिए वहाँ पे धूल भी ज़्यादा उड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं और ऐसे ढीले से पोशाक पहनते हैं। सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा यानी कि रुमाल बांध कर रखते हैं। ड्यू टू दी वेरिड क्लाइमेट कंडीशन अक्रॉस इंडिया, द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज्ड इन बिजनेसेस. The people of Punjab are mostly soldiers, while the people of northern India are involved in agriculture. Similarly, the nomads of the desert are engaged in animal husbandry. भारत में क्लाइमेट की विविधता होने से हमारे जो व्यापार और ये सभी हैं ये भी अलग अलग स्टेट वाइज बटे हुए हैं। जैसे कि गुजरात में ज़्यादातर व्यापार होता है, बिजनेसमैन होते हैं। फिर पंजाब में सैन्य प्रवृत्ति, उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में विचरण करने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर घूमते रहते हैं। वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात, वाइल राइस एंड फिश फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरल एंड वेस्ट बंगाल. गुजरात के समुद्री किनारे वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गेहूँ, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग ज़्यादा होता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड based on its quality, capacity and utility and which becomes our heritage can be termed as resources. मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है, यानी कि रिसोर्सेस कहा जाता है. Resources are also those that can fulfill certain aims, objectives and offer concrete solutions towards problems. यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकालने की क्षमता का समावेश होता है. Anything that can be aimed at and used to accomplish human necessities also becomes a resource. इस प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकताओं पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन बन जाता है. The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. That is why those minerals were not considered as a resource. But these resources are very useful for the modern man. The things that help in man's welfare and satisfy their demands are resources for man. मनुष्य को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में पहले जानकारी नहीं थी. वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था. उसके लिए वह संसाधन नहीं था. किंतु अभी
मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी हैं। ये पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्य करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।